हेलो गाइस, लर्निंग विद जिष्णु ट्यूटोरियल्स में आप सबका स्वागत है। मैं आपका होस्ट कृष्णा तनु बैनर्जी आज फिर से आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है कंजंक्शंस। इंग्लिश ग्रामर में कंजंक्शंस का क्या रूल होता है, उसका यूजेस कैसे होते हैं, आज हम वो सीखेंगे। कंजंक्शंस के बारे में कुछ वीडियोस आने वाले हैं। ये उनमें से पहला वीडियो है, यानी कि ये कंजंक्शंस पार्ट 1 है। What is a conjunction? Definition: A conjunction is a word or phrase which joins together words or sentences or parts of sentences। मतलब conjunction वो word है या फिर phrase है जो कुछ शब्दों को या फिर कुछ sentences को या फिर बहुत सारे sentences को आपस में जोड़ते हैं। conjunctions का काम करना है जोड़ना। Study the sentences, मतलब नीचे कुछ सेंटेंसेस हैं उसको पढ़ना है। पहला है 3 and 2 make a 5। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो इटैलिक्स में लिखा हुआ है। एंड फिर है राम went to school but Abdul stayed at home। नंबर 3 we can read as well as write। नंबर 4 I am strong though I am young। In the above sentences the words in italics and but as well as though join together words as in number 1 मतलब 3 and 2 दो वर्ड्स make a 5 मतलब 3 और 2 मिला के 5 बनते हैं। और sentences as in 2 3 4 sentences नंबर 2 3 4 यहाँ पे but as well as दो जोड़ sentences को जोड़ते हैं। यहाँ पे गौर कीजिएगा as well as ये वर्ड नहीं है, ये एक फ्रेज है। These words in italics are called conjunctions। ऐसे ही कुछ वर्ड्स को conjunctions कहते हैं। आगे देखते हैं। अब आता है formation of some common conjunctions। Note: Remember, some conjunctions are formed from relative pronouns, relative adverbs, prepositions and by using the word and। मतलब कुछ conjunctions relative pronouns, relative adverbs और prepositions से यूज होते हैं, से बनते हैं। और and जो वर्ड है वो भी conjunctions का काम करता है। नंबर 1 by using relative pronouns। कौन है? who, whose, whom, which, that, ये सब relative pronouns हैं। नंबर 2 by using relative adverbs। when, where, how, why। नंबर 3 by using prepositions in, on, to, at, with। नंबर 4 by using the word and। ये सब से conjunctions बनते हैं। अब आगे देखते हैं। Conjunctions formed from relative pronouns: who, whom, which, that। These words in italics are called relative pronouns which are also used sometimes as conjunctions। मतलब ये जो 4 वर्ड है इटैलिक्स में लिखा हुआ है और बोल्ड किया हुआ है who, whom, which, that, ये सब रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं और कभी कभी इन्हें कंजंक्शंस के तौर पे भी यूज होता है। एग्जाम्पल: I know the boy who scored the highest marks। Who, the boy who। यहाँ पर एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि who किसे रेफर करता है। याद रखिएगा who के पहले जो प्रोनाउन या फिर नाउन आता है उसे ही who डिनोट करता है। Who is a relative pronoun. It joins 2 sentences. I know the boy and the boy scored the highest marks। मतलब ये जो 2 sentences है I know the boy और दूसरा the boy scored the highest marks, ये दोनों को sentences को जोड़ने का काम who करता है जो कि एक relative pronoun है। फिर देखिए it also does the work of referring to the noun the boy। Some other examples: Ram was the person who was known for his singing talent। Number 2 Harish who lives next to my house is my brother। Number 3 Geeta who is the school captain is also a good dancer। ये था relative pronoun। आगे देखते हैं। अब आता है conjunctions formed from relative
एडवर्ब्स व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सब रिलेटिव एडवर्ब्स हैं. These words in italics are relative adverbs. They are also used as conjunction in some cases. मतलब ये जो italics में 4 words हैं इन्हें relative adverbs कहा जाता है, लेकिन कभी कभी ये भी conjunctions का काम करते हैं. Example, I know the house where the boy lives. मतलब मुझे वो घर पता है जहां वो लड़का रहता है. देखिए नीचे explanation है. Where is a relative pronoun. Sorry, where is a relative adverb. It joins 2 sentences. I know the house and in that house the boy lives. It also denotes the work of modifying the verb lives. अब आता है conjunctions using prepositions. In, on, to, at. ये सबको prepositions कहते हैं. These words in italics are known as prepositions. They are also used sometimes as conjunctions. मतलब ये जो 4 prepositions हैं इन्हें conjunctions के तौर पे भी यूज किया जाता है. एग्जाम्पल है पुट द बुक ऑन द टेबल. किताब को टेबल के ऊपर रखो. ऑन मतलब ऊपर. ऑन इज अ प्रीपोजिशन. इट एस्टैब्लिशेस सम कनेक्शन बिटवीन द 2 वर्ड्स बुक्स एंड टेबल्स. इन दोनों वर्ड में एक कनेक्शन बनाता है. कौन? ऑन जो प्रीपोजिशन वो बनाता है. इट ऑल्सो शोज द पोजिशनल रिलेशन बिटवीन बुक एंड टेबल. पोजिशनल रिलेशन मतलब पोजीशन क्या है, दोनों का पोजीशन क्या है, बुक और टेबल का. बुक कहां पे है? टेबल के ऊपर है. पोजिशनल रिलेशन कहते हैं. इट एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑन. ऑन के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी काम करता है. कंजंक्शंस यूजिंग एंड. मैंने पहले कहा था कंजंक्शंस 4 मेन उपाय से बनते हैं. कौन कौन? रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस और एंड. एंड उस लिस्ट में लास्ट में आता है. देखिए एग्जांपल है ही गेव मी अ टेबल एंड अ बुक. उसने मुझे एक टेबल और एक बुक दिया. एक्सप्लेनेशन है एंड इज अ कंजंक्शन. इट जॉइंस टेबल एंड बुक बट एंड डज नॉट डू एनी अदर वर्क लाइक अ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब और प्रीपोजिशन एज एक्सप्लेन्ड प्रीवियसली. मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन, एडवर्ब या प्रीपोजिशन काम करते हैं रिलेट करना, एंड वो सब कुछ नहीं करता है. एंड सिर्फ जोड़ता है बस, उसका और कुछ काम नहीं है. देखिए ही गेव मी अ टेबल एंड अ बुक. उसने मुझे एक टेबल दिया और बुक दिया. ना तो बुक के साथ टेबल का रिलेशन है, ना तो टेबल के साथ बुक का रिलेशन. दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, बस जोड़ता है. यही काम है. आगे बढ़ते हैं. Compound conjunctions. Some phrases formed by 2 or more words which are called compound conjunctions. देखिए कुछ conjunctions ऐसे होते हैं जो 2-3 शब्दों को मिला के बनते हैं. वो अकेले ही एक conjunction है. उसको अगर आप तोड़ेंगे तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा. Examples हैं I will rent you the flat provided that you do not cook meat. यहाँ पे फ्लैट लेने का एक शर्त है. क्या? मांस बना नहीं सकते हैं आप. एग्जाम्पल है आई विल एक्सक्यूज यू दिस टाइम ऑन कंडीशन दैट. मतलब एक ही शर्त पे, ऑन कंडीशन दैट. ये पूरा एक कंजंक्शन है. यू डू नॉट रिपीट द ब्लंडर. कि तुम वही गलती मत दोहरा. यहाँ पे आप यही मत गलती दोहराना मत कि आप सब्सक्राइब ना करें. सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए. अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कीजिए. फिर एग्जांपल नंबर 3 है ही टुक ऑफ हिज कोट एज सून एज ही रिटर्न. एज सून एज ये भी एक कंजंक्शन का काम करता है. इन सबको हम कंपाउंड कंजंक्शंस कहते हैं. कुछ और भी कंपाउंड कंजंक्शंस हैं जैसे आप देख पा रहे हैं. द कंपाउंड कंजंक्शंस आर इवन इफ, so that, as well as, in order that, provided that, on condition that, as soon as, etc. ये सब कंपाउंड कंजंक्शंस हैं. वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. हमारा टॉपिक कंजंक्शंस पार्ट 1 आज यहीं पे खत्म होता है. वीडियो अगर अच्छा लगे
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए लर्निंग विद जिष्णु ट्यूटोरियल्स।